Good evening, friends. Yes, Dr. Ashwini Kumar Singh, असिस्टेंट प्रोफेसर संस्कृति यूनिवर्सिटी। मैं सबसे पहले थैंक्स बोलना चाहता हूँ मुदगिल सर का, जिन्होंने इतना बेहतरीन, मेरे ख्याल से पहला कॉन्फ्रेंस है जो कि ऑनलाइन हो रहा है, उनकी और उनको टीम के लिए बहुत ही थैंक यू। सो फ्रेंड्स, टुडे आई विल गिव यू सम न्यू टेक्निक्स which we can utilize in our physiotherapy clinical practice. First of all, let me talk, my topic would be yogic physiotherapy. What is yogic physiotherapy? It is the term which many of you are hearing for first time, and some of you have heard it before also. मैंने 2-3 सेमिनार में भी इस टॉपिक पे बोला है और इसमें ही बोलता हूँ। तो जो योगिक फिजियोथेरेपी है क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड अंडरस्टैंड व्हाट इज फिजियोथेरेपी। फिजियोथेरेपी इज़ वी आर नोन एज अ मूवमेंट स्पेशलिस्ट। फिजियोथेरेपी इज अ हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स which can diagnose, plan the treatment, get the feedback and can change their planning. Now they can see patient on first stage only. We are physiotherapists and we should be proud of being a physiotherapist. We are specialists in movement, joints problem, paralysis, neurological problems. There is only one field, that is physiotherapy. Yoga is basically a science which works on the union. Union means addition. According to the text, Hindu text, the yoga definition means it is a union of our subconscious mind to the superconscious mind, यानी आत्मा का परमात्मा से मिलन. This is called, in simple language, yoga is an art of living. So we student must practice yoga also and should use some technique of yoga in our day-to-day physiotherapeutic clinical practice. Now, how it can be done? I have been practicing this technique for last 8 years and I have seen lots of benefit in the patient. I will discuss 1 or 2 cases with you. Then I will tell you the basic technique, basic thing of this yogic physiotherapy technique. In 2014, when I was departmental in charge of physiotherapy in Dev Sanskriti Vishwavidyalaya, Haridwar, there a patient came to me for clinical treatment, for his physiotherapy treatment. Now, what is the basic unique feature of the clinic of physiotherapy in Dev Sanskriti Vishwavidyalaya was that they are polyclinic. There are only 4. We used to treat patients by 4: yoga, physiotherapy, acupressure and naturopathy. I practice yogic physiotherapy, and what I have seen a tremendous impact on the patient. एक पेशेंट थे संजीत दास. ही वॉज फ्रॉम वेस्ट बंगाल में ही वॉज हैविंग अ प्रॉब्लम ऑफ PIBD, prolapse intervertebral disc. He has gone for treatment in many hospitals, many big orthopedic surgeon also of Kolkata. He was given lots of treatment, but he did not respond to that treatment. When he visited Dev Sanskriti Vishwavidyalaya, as you know, Haridwar is a tourist spot. He visited for a tourist destination. He visited our clinic. There he came to me और उन्होंने मुझसे बोला I want physiotherapy treatment. मैंने बोला okay, you just show me your last report, what the treatment you have gone, just show me that. I have just gone through that. He was very much nervous
और मैंने उनसे पूछा कि सर आप इतने उदास क्यों हैं, क्या बात है बताइए। बोला डॉक्टर साहब मैंने कई डॉक्टरों को दिखा लिया, ऑर्थोपेडिक को दिखा लिया, फिजियोथेरेपिस्ट को दिखा लिया, सबको दिखा लिया, मेरे को कोई असर नहीं हुआ। तो मैंने उनको बस एक ही बात बोला कि आप यहाँ पर आए हो बिकॉज यू वांट टू बी ट्रीटेड फॉर दिस प्रॉब्लम, और यहाँ आप आए हो, आप पूरी तरह से ठीक होके जाओगे, यू विल बी बेनिफिटेड फॉर आवर ट्रीटमेंट। और वैसे भी आपको कुछ नहीं है, आप यहाँ चल के आए कि नहीं आए, कोई दिक्कत हुई आपको? नहीं सर मुझे कुछ दिक्कत हल्की सी हो रही थी, थोड़ी मेरी फॉरवर्ड बेंडिंग में थोड़ी हल्की सी पेन हो रही थी। ठीक है कोई बात नहीं, वो भी हम ठीक कर देंगे। फिर उनको मैंने प्रॉपर ट्रीटमेंट जो होता है, जो नॉर्मल रूटीन फिजियोथेरेपिकल ट्रीटमेंट होता है विथ माई सम ऑफ द टेक्निक्स आई हैव आल्सो अप्लाइड। और मैंने एक चीज़ उनको बोला कि वेन एवर यू आर गेटिंग ट्रीटेड जस्ट इनहेल एंड एक्सेल। जैसे ही मैंने उस बंदे को SWD पे लगाया, उनको मैंने बोला देखिए अभी आपको हीटिंग हो रही है, अब जब आप बैठो बेड पे लेटो तो आप जब इनहेल करोगे तो महसूस करोगे कि आपके अंदर कुछ पॉजिटिव एनर्जी आ रही है, और वो इनहेल के माध्यम से जिस एरिया में आपको पेन है वो हील हो रहा है। और जब सांस छोड़ो तो महसूस करो कि वहाँ की जो प्रॉब्लम है वो बाहर आ रही है, उस पर आप ध्यान करो। जस्ट थिंक ऑन दैट यू आर गेटिंग बेटर एंड बेटर विद ईच ब्रीथ। 15 मिनट्स का ड्यूरेशन दिया हमने SWD। उसके बाद उनको हमने लंबर ट्रैक्शन दिया। लंबर ट्रैक्शन में वही टेक्निक बोला मैंने कि आप इसको फॉलो कीजिए। उन्होंने बोला कि ये तो मुझे किसी ने बताया नहीं था, इससे क्या फ़ायदा है, ऐसा कुछ होने वाला नहीं। बोले सर आप बस विश्वास रखिए, जो मैं बता रहा हूँ आप इसको कीजिए। 15 डेज़, आफ्टर 15 days of continuous treatment, he was benefited. He was totally cured. His pain has gone. He was very active. He was full of positive thinking, and he just saluted me. बोला you are a physio. मैंने बोला हमने कुछ नहीं किया। It is all done by some, और आप किसी को मान सकते हैं, गुरु मान सकते हो, भगवान मान सकते हो। डॉक्टर भी यही बोलते हैं, हम तो नहीं पूरी कोशिश कर रहे हैं, बाकी ऊपर भगवान के ऊपर। उनको आपको बोलना है हमने पूरा कोशिश किया, ये आप हैं जो आप ठीक होना चाहते थे, आपने डेडिकेशन बनाया कि मुझे ठीक होना है, आप ठीक हो गए। आई वाज बेनिफिटेड फॉर दैट। मेरा एग्जांपल देने का मतलब ये है कि इसमें मैंने क्या किया। क्या होता है हम लोग के लाइफ में, हम कितने भी ट्रीटमेंट देते हैं लोगों को, जब तक वो साइकोलॉजिकली बूस्टअप नहीं होते हैं, जब तक आप उनको मोटिवेट नहीं करिएगा कि आप ठीक हो रहे हैं, कैसा हो रहा है। मैनी ऑफ द फिजियोथेरेपिस्ट व्हाट दे डू, पेशेंट आया, देखा, डायग्नोस किया, ट्रीटमेंट दिया, मैनिपुलेशन दिया, एक्सरसाइज किया और छोड़ दिया, है ना। लेकिन अगर आप इस टेक्निक को आप जोड़ोगे, कौन कौन टेक्निक है, बस एक है पॉजिटिव फीडबैक, ठीक है, एक है मेडिटेशन, ये दो बहुत बड़ा टेक्निक्स है, एंड प्राणायाम। प्रॉपर ट्रीटमेंट आप दीजिए, फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट दीजिए, इनके साथ आप इसको दीजिए, बेनिफिट होगा आपको। बाकी अपना आप जो भी प्रॉब्लम है, आई कैन गिव यू माई email, you can email me also if you're doing clinical practice. If you have any positive result in following this technique, you can email me. My email is draks1983@gmail.com, draks1983@gmail.com, draks1983@gmail.com. You can email me, okay. और जो भी आप सजेशन है आप मुझे बता सकते हैं, या आप मुदगिल सर से ही बात कर सकते हैं। मुदगिल सर हमें जो भी कुछ होगा मुदगिल सर मैं डिस्कस कर लूँगा। अब देखिए, पेशेंट जो हमारे पास आता है उसे फिज़िकल बॉडी नहीं है। अगर हम उसको फिज़िकली बॉडी की तरह अगर ट्रीट करेंगे कोई बेनिफिट नहीं होगा। आप लोगों ने बहुत क्लिनिकल एक्सपीरियंस आपने किया होगा, कई अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट हैं इस फील्ड में, जितने बड़े फिजियोथेरेपिस्ट हैं। मुझे मौका मिला, हमारे अन्ना मलाई सर हैं, हमारे मुदगिल सर हैं,
मुदगिल सर से जब मिले होगे तो आपको लगा होगा कि क्या फिजियो शुड बी लाइक दैट, इतने बिंदास बोलने में कवि हैं। वो ऐसे ही पेशेंट को अपना मोटिवेट कर रहे थे। कहते हैं फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन। अगर आपने पेशेंट को अच्छी तरह से मोटिवेट कर दिया, फर्स्ट इंस्टेंट पे पेशेंट तुम्हारा हो जाएगा। आपने कई जगह कहानी सुना होगा डॉक्टरों का कि भाई साहब किसी गांव की एक लेडीज़ थी, उसको पटना ले गए थे ट्रीटमेंट के लिए, बेस्ट डॉक्टर से ट्रीटमेंट कराया, उसको असर नहीं हुआ। उसने बोला कि भैया हमारा के ले चला अपन गांव के डॉक्टर के यहाँ। वहाँ एक सिंपल डॉक्टर थे MBBS, उन्होंने दवा दिया, उनसे ठीक हो गई। क्या है ये? सेम ट्रीटमेंट। आपने भी देखा होगा कई डॉक्टर्स को लोग दिखाते हैं किसी एक डॉक्टर से ठीक होते हैं। क्यों होते हैं? बिकॉज ऑफ पेशेंट्स माइंड सेटअप। जब पेशेंट का माइंड सेटअप नहीं होगा, आप कितने भी अच्छा ट्रीटमेंट क्यों ना दे पेशेंट को, पेशेंट रिस्पॉन्स नहीं करेगा। और योगा पुराना टेक्स्ट, आपने नाम सुना होगा, अभी हरियाणा के आप लोग हैं, हरियाणा में लॉर्ड कृष्णा, महाभारत फेमस है। लॉर्ड कृष्णा वॉज द फर्स्ट फिजियोथेरेपिस्ट, आई नो ऑल ऑफ यू नो। प्लस ही वॉज ऑल्सो योगी ऑल्सो, जिन्होंने भगवद गीता लिखा था, जो पूरा योग का पूरी फिलॉसफी ऑफ योगा है। इन्होंने वर्ड कहा था योगा कर्मसु कौशलम, डू योर ड्यूटी विदाउट आस्किंग फॉर एनी फ्रूट और रिजल्ट, डू योर बेस्ट, डोंट वेट फॉर द रिजल्ट। अगर आपने अच्छा किया है रिज़ल्ट आपको मिलेगा, नहीं रिज़ल्ट अच्छा आ रहा है तो कोई नहीं, उसको आप मॉडिफाई कीजिए। दैट इज कॉल्ड फिजियोथेरेपिस्ट। फिजियोथेरेपी का प्रोफेशन भी ऐसे ही है। हमने एक ट्रीटमेंट दिया, पेशेंट को से रिस्पॉन्स नहीं किया, उसका हमने फीडबैक लिया, फिर हम ट्रीटमेंट का टेक्निक हमने चेंज किया, फिर देखा कौन सा टेक्निक बेस्ट है। अभी जो हमारे न्यू फिजियोथेरेपिस्ट जो अभी क्लिनिक में उतरेंगे, उनको पहले एक्सपीरियंस करना पड़ेगा, तो वो समझेंगे। हम लोग तो एक्सपीरियंस से समझ गए हैं पेशेंट को किस तरह डील करना। जितने भी आपके प्रॉपर नॉन फिजियोथेरेपिस्ट हैं, दे आर वेरी एक्सपीरियंस्ड। मैं अपने स्टूडेंट्स को भी यही बोलता हूँ, इसी को प्रमोट करता हूँ स्टूडेंट्स को। WHO का डेफिनेशन है, इट इज़ द नॉट द हेल्दी पर्सन आर नॉट दोज पर्सन हु आर फिजिकली फिट, बट देर मस्ट बी बैलेंस ऑफ four determinants must be there: physical, mental, social and spiritual. These are the 4 words which can be used by WHO in the definition of health. Now come to physiotherapist. Physiotherapy can give physical, we can improve your physical health, but we are lacking in social, mental and spiritual. But if we can use the technique of yoga, अगर आप इंटरेस्टेड हो और अगर यूनिवर्सिटी आपके इंटरेस्टेड है तो मैं सेशन भी कर सकता हूँ आप लोग के लिए। यू कैन इनवाइट मी फॉर अ लाइव सेशन, आई विल शो यू द टेक्निक हाउ टू डू दैट एंड आई कैन प्रमोट इट हाउ टू डू इट। तो यू कैन कॉल मी, यू कैन टेक माई नंबर फ्रॉम डॉक्टर मुदगिल सर इफ़ यू आर इंटरेस्टेड। तो फिज़िकल हेल्थ आपने जब इम्प्रूव कर दिया, मेंटल, सोशल एंड स्पिरिचुअल, योग में 5 A's आता है। तो यू हैव टू डू फिजियोथेरेपी प्लस 5 A's टेक्निक ऑफ योगा। व्हाट आर द 5 A's टेक्निक? फर्स्ट इज साधना। साधना मीन्स प्रैक्टिस। फॉर बिकमिंग गुड फिजियोथेरेपिस्ट, फॉर बिकमिंग अ गुड क्लिनिकल फिजियोथेरेपिस्ट, और you have to, this is for all my students of all over India, all over world, that first make yourself best. You make yourself best and then live for the rest. आप अपने आप को चेंज करो, अपने आप को मॉडिफाई करो, अपने आप को ट्रेन करो, अपने आप को जितना डेवलप कर सकते हो। अभी महाभारत चल रहा है, आप देख रहे होंगे, पांडवों को 12 साल का वनवास मिला था। 12 साल उन्होंने क्या किया? टेक्निक्स, पावर, ये सीखा उन्होंने। रामायण में भी हमने देखा, जब राम जी जब जाने वाले थे लंका, इसको उसके पहले ऋषि ने उनको कितने सारे हथियारों का ट्रेनिंग दिया था, किस तरह चलाना है, ट्रेनिंग। अर्जुन का आप एग्जांपल ले सकते हैं, कितना ट्रेन किया उसने। जब वो इंद्र के पास जाता है ट्रेनिंग के लिए, तो इंद्र बोलता है आपको डांस कला भी आना चाहिए, नृत्य कला भी आना चाहिए, आपको फ़ायदा होगा। यू शुड लर्न एवरी टेक्निक, यू शुड बी लाइक अर्जुन। सब का महारथी। और लॉर्ड कृष्णा
the physiotherapist, first physiotherapist, be Lord Krishna. Just follow his quality. ओके तो उसमें 5S में साधना मीन्स प्रैक्टिस, साधना करना जो भी आपको दिया गया है। जैसे अगर आप टीचर हैं, यू जस्ट गो फॉर रिसर्च, गो फॉर पेपर पब्लिश, लर्न न्यू टेक्निक। फॉर स्टूडेंट्स, learn from teacher, improve your subject knowledge. First of all, improve your basic is anatomy, biomechanics. Your biomechanics, anatomy, exercise, ergonomics, this should be best. Anatomy should be your best if you want to become a good physiotherapist. Anatomy and biomechanics have a very sound knowledge. Your knowledge should be like that you can target a doctor also. There are many friends in physiotherapy. I have many friends in my physiotherapy field जिन्होंने MBBS डॉक्टर ऑर्थोपेडिक डॉक्टर को टक्कर दिया है नॉलेज में. So you can become a good physiotherapist by following this. So sadhana, practice. Then comes swadhyaya, that is called self study. Should know yourself. अब हम आपका बात कर रहे हैं पेशेंट पे कैसे करेंगे साधना. पेशेंट पे प्रैक्टिस ऑन पेशेंट. जितना अच्छा आप टेक्निक प्रैक्टिस करेंगे पेशेंट पे उतना अच्छा आपको रिस्पॉन्स मिलेगा. आप पहले फेल हो गए, कोई नहीं, दूसरा टेक्निक लगाइए, पेशेंट को ठीक कीजिए, उससे पहले पेशेंट को मोटिवेट कीजिए. दूसरा है स्वाध्याय, सेल्फ स्टडी. आप खुद स्टडी कीजिए कि आप कहाँ दिक्कत हो रहा है आपका. अगर आपसे नहीं हो रहा तो अपने सीनियर से पूछिए कि सर हमने ये टेक्निक लगाया है, इस टेक्निक से मेरे को आराम नहीं हो रहा है, मैं क्या करूँ. जस्ट चेंज योर टेक्निक. Then 3 called संतोष. संतोष means you should not be going on different treatment, so much nervous. अरे क्या करें भैया, अरे ये ट्रीटमेंट दो, ये ट्रीटमेंट दो, ये ट्रीटमेंट दो, वो ट्रीटमेंट. नो, जस्ट बिलीव ऑन योर क्वालिटी, योर टेक्निक. कभी भी किसी फिजियोथेरेपिस्ट को से तुलना अपना मत करो. जस्ट मेक योर सेल्फ यूनिक. हम सबका चेहरा अलग है बिकॉज वी आर द यूनिक क्वालिटी. यू हैव यूनिक क्वालिटी. यू आर द यूनिक क्रिएशन ऑफ गॉड ऑन दिस अर्थ. दैट्स वाई यू हैव डिफरेंट फेसेस. सो जस्ट compete with yourself. Do your best and just believe on your technique. Santosh. Then comes seva. Many of physiotherapists are doing seva in this कोरोना वायरस. ये बहुत बड़ा खतरा हमारे देश पे है, लेकिन कई सारे फिजियोथेरेपिस्ट भी इसमें पूरे जोश के साथ, पूरे अपने दम कमसे के साथ आगे निकल के काम कर रहे हैं. सेवा. जब पेशेंट आपके पास आए, देखा गया है जब आपके अंदर फाइनेंशियल इश्यू रहता है, भैया पेशेंट से मैं कैसे ट्रीटमेंट लूँ, इससे हम अगर 10 दिन का ट्रीटमेंट लेंगे तो मेरे को 10,000 रुपये मिलेगा, 8,000 रुपये मिलेगा. आपका वहीं पे जो ट्रीटमेंट है फेल हो जाएगा. जैसा एनर्जी, जब भी आप ट्रीटमेंट करोगे पैसों के लिए, पेशेंट का भी बेनिफिट नहीं करेगा. जब आप पूरी माइंड के साथ, पूरे जोश के साथ उसी पर ध्यानस्थ होके उसी पर पूरा फोकस करेंगे, आप पेशेंट को फोकस करेंगे, पेशेंट के डिजीज़ को फोकस करेंगे, पेशेंट को डिसेबिलिटी को फोकस करेंगे और ट्रीटमेंट देंगे. पैसे के बारे में नहीं सोचेंगे, पैसा बाद में जाए, आपके पैसा उड़ के आए. एक बहुत बड़े मूवी आया था, आप सबने देखा था, 3 इडियट्स. पैसों के पीछे मत भागो, काबिल बनो, पैसा झक मार के पीछे आएगा. वैसे मैं बोलना चाहता हूँ, improve your physiotherapeutic techniques, tips, physiotherapeutic basics. If a patient comes to you, give your best treatment. Money will come back to you, but don't focus on money. Physiotherapy is a very noble profession. हमारे कई सारे इंडिया के नॉन फिजियोथेरेपिस्ट हैं जो इस तरह की एक्टिविटी करते हैं. डॉक्टर सोराब सर, इन्हें बहुत अच्छा काम किया है. आपने मुदगिल सर, वो भी सोशल एक्टिविस्ट हैं, लगे रहते हैं काम में. ऐसे कई सारे लोग हैं, ऐसे कई फिजियोथेरेपिस्ट हैं.
तो उनकी तरह बने और सेवा करें, सेवा। और जो आखिरी स है वो आप होता है आपका समय संयम, टाइम मैनेजमेंट। आपको टाइम मैनेजमेंट करना अच्छी तरह से आना चाहिए। अगर टाइम मैनेजमेंट सही है, यू कैन ट्रीट योर पेशेंट वेरी नाइसली। अगर आप टाइम के परफेक्ट हैं तो यू कैन डू वंडर इन योर लाइफ। तो अपना फिजियोथेरेपिकल टेक्निक्स एंड 5S टेक्निक्स ऑफ योगा, इन दोनों को अगर आप जोड़ोगे, यू हैव अ गुड इम्पैक्ट ऑन द पेशेंट ट्रीटमेंट। सब टेक्निक अप्लाई कीजिए आप। मेडिटेशन, अपने आप को भी आप ही योगा करिए, क्योंकि इफ फिजियोथेरेपिस्ट आर नॉट फिट नॉर physically, mentally, socially, spiritually healthy, then how can we treat a patient? Many of your therapists or students also go into stress. They become very stressful. So yoga is a good technique for you to practice. But not give 2 hours of time, just 30 minutes of time for practicing yoga. And this positive feedback technique has done wonder in my practice. In practices, positive feedback technique, you are getting better. Just think that inhale, that positive energy is coming there, it is healing your painful area. When you are breathing out, that pain is going out, you are getting better and better. This all are techniques. ये हमें इसे कहते हैं योगिक फिजियोथेरेपी टेक्निक्स। योगा के बहुत सारे डेफिनेशन हैं। प्राणायाम हैज़ अ गुड इम्पैक्ट। अगर आप फिजियोथेरेपिकल ट्रीटमेंट के बाद अगर लास्ट में पेशेंट से प्राणायाम कराएंगे और एंड में मेडिटेशन कराएंगे, मेडिटेशन कैसा? मेडिटेशन में करेंगे क्या? पेशेंट को आराम से बैठाएंगे, ज्ञान मुद्रा लगवाएंगे, आराम से पेशेंट को बैठ कर रिलैक्स में बैठाएंगे। बॉडी शुड बी स्ट्रेट, रियली द पेशेंट शुड बी रिलैक्स। पेशेंट को बोलेंगे आँख बंद करने के लिए। पहले बोलेंगे पेशेंट को फोकस करना ब्रीदिंग पे, इनहेल एक्सेल बोलेंगे। अपने सांसों को देखें, आप जो सांस ले रहे हैं वो आपके अंदर जा रहा है और जो भी आपके एरिया में प्रॉब्लम है वहाँ हील कर रहा है। जब सांस छोड़ रहे हैं आप महसूस कीजिए वहाँ से वो पेन या प्रॉब्लम बाहर जा रहा है। जस्ट कंसंट्रेट ऑन दैट और बोलिए विथ एवरी एक्सलेशन, जितना जैसे आप सांस छोड़ रहे हैं आप वैसे वैसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं। आपको प्रॉब्लम आपकी क्योर हो रही है, यू आर गेटिंग बेटर। उसके बाद पेशेंट को कर 2-3-4 मिनट, जब पेशेंट थोड़ा शांत हो जाएगा तो उस पेशेंट को आप बोलेंगे आज हमने आपको ये ट्रीटमेंट दिया, उस ट्रीटमेंट को देखें। बॉडी से मैंने शॉर्ट मेडिसिन दिया, आपके बॉडी को हमने हीट दिया, देखिए उस एरिया में आपका हीट ने क्या काम किया है। आप पहले से ठीक हो गए हैं, आप पहले से अच्छे हो गए हैं, आज आपके अंदर नई चेंजेस आए हुए हैं। ऐसे ही हर टेक्निक्स है, जितने भी अपने ट्रीटमेंट दिए हैं सबको पेशेंट्स को निकालो बाहर, उसके पेशेंट को एडवाइस करो कि आपको घर पे ये करना है। बस इट विल डू वंडर। प्रैक्टिस दिस, यू कैन प्रैक्टिस इट। अभी आप जो स्टूडेंट्स हैं, जो इंटर्न्स हैं, आप कोशिश करिएगा, इंटर्नशिप में आप घुसे हैं तो आप टेक्निक अप्लाई कीजिएगा पेशेंट पे, अच्छा बेनिफिट होगा। अगर बेनिफिट होता तो मुझे ज़रूर ईमेल करें, बताएं आप कि टेक्निक कैसा लगा। तो फिर मैं रिपीट करना हूँ, मेरा नाम डॉक्टर अश्विनी कुमार सिंह, आई एम असिस्टेंट प्रोफेसर इन संस्कृत यूनिवर्सिटी मथुरा की मथुरा भूमि से हूँ मैं, लॉर्ड कृष्णा की भूमि से। तो मथुरा से डायरेक्ट लाइव आपको सुना रहा हूँ, रिकॉर्डेड आपको मैं लेक्चर भेज रहा हूँ। भगवान श्री कृष्ण आप सबको
शक्ति दे और ये कोविड से बचा कर रखे। कोविड पे कुछ मैं बोलना चाहता हूँ। कोविड-19 कहते हैं प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो आपको सिर्फ कोविड से बचने के लिए 3 चीज़ करने हैं। एक तो आपको करने हैं प्राणायाम। प्राणायाम करने से ब्रीदिंग इम्प्रूव होता है, आपका लंग्स कैपेसिटी बढ़ती है, एल्वेलाई खुलती है। एल्वेलाई खुलेगी तो उतनी आपकी इम्यूनिटी तगड़ी होगी, जितनी आपकी इम्यूनिटी तगड़ी होगी उतना आप बाहर के वायरस से लड़ सकते हैं। दूसरा, मेडिटेशन कीजिए। और तीसरा, टाइम ना हो तो सूर्य नमस्कार जरूर ट्राई कीजिए। आपको यूट्यूब पे, वीडियोस पे हर जगह सूर्य नमस्कार मिल जाएंगे, उसको फॉलो कीजिए। 3 टेक्निक फॉलो कीजिए। गर्म पानी पीजिए, हल्का सुसुमता, गर्म पानी भी नहीं। बाहर ना निकलें, जब भी अंदर आएँ तो अपने हाथ सैनिटाइजर से धोएं। मास्क लगा के बाहर जाएं। लोगों से लगभग कुछ दूरी बना के रखें। जो भी रेगुलर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की जो रेगुलर मैनुअल्स आते हैं, जो भी गाइडलाइंस आते हैं, उसको फॉलो करें और अपने को बचा के रखें। और ये टेक्निक को ज़रूर फॉलो करें। योगिक फिजियोथेरेपी टेक्निक्स बहुत अच्छा इम्पैक्ट करता है। ये थॉट्स का बहुत बड़ा बॉडी पे इम्पैक्ट है, थॉट्स के ऊपर। आपने कभी देखा होगा, कभी जब भी लड़ाई होता है तो आप किसी कुछ लड़ते हो, बोलते, इसको मैं पॉजिटिव दिखा रहा हूँ, एनर्जी क्या होता है। अगर आप पॉजिटिव एनर्जी के साथ पेशेंट को ट्रीट करोगे तो पेशेंट विल बेनिफिट। अगर पेशेंट को नेगेटिव एनर्जी ट्रीट करोगे तो पेशेंट का भी बेनिफिट नहीं होगा। आपने कभी कई लोगों से मिलते हैं, जैसे मिलते ही लगता है वाओ कितने अच्छे लोग हैं। पहले भी किसी से मिलते तो एक बॉडी में फील, एक अपने माइंड में फीलिंग आती है कि ही इज़ अ वेरी गुड पर्सन, आई शुड मस्ट इंटरेक्ट विथ हिम। और कुछ लोग ऐसे होते हैं वो देख के लगता है कि आपको हाय भैया ये कौन आ गया, कौन है यार, ये यार बकवास, क्या चेहरा है यार। अगर आप अपने आप को पॉजिटिव अंदर से रखोगे, पॉजिटिव आपका बाहर दिखाई देगा, आपकी पर्सनैलिटी में दिखाई देगा। थॉट्स का बहुत बड़ा इम्पैक्ट है आपके बॉडी पे। व्हाट इज़ थिंकिंग, व्हाट इज़ थॉट्स, थॉट्स वर्क्स on your waves. Our body is made up of atoms, proton, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, है ना। तो अगर आपकी पॉजिटिव वेव्स हैं तो आपकी बॉडी की हीलिंग भी पॉजिटिव रहेगी। इस पर एक अलग मेरा सेशन होता है बायो हीलिंग के ऊपर, बायो एनर्जी हीलिंग पे। वो मेरा लेक्चर अलग होता है, उस पर कभी और बात करेंगे जब मौका मिला तो। एक अलग एनर्जी होती है, उस एनर्जी से हम ट्रीट करते हैं लोगों को, होती है। थॉट्स का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है हमारे बॉडी पे। एक कभी बहुत आपने बहुत एक्सपेरिमेंट सुना होगा। एक कोई डॉक्टर थे, कहते जापान के थे। उन्होंने इस पे काम किया था कि उन्होंने एक 2 ग्लास लिया था, शीशे का ग्लास में पानी डाला था। एक पानी को उन्होंने खूब गाली दिया और दूसरे पानी को पॉजिटिव बोला, अरे यार बहुत ये हो गया, और उसको फ्रिज में रख दिया। कुछ समय के बाद जब फ्रिज खोला, जब उसने फ्रिज खोल कर उस पानी को निकाला तो जिसको पॉजिटिव फीडबैक दिया था उससे बहुत अच्छा बर्फ़ था, लेकिन जिसको उसने कुछ नेगेटिव बोला था, बहुत बुरा बोला था, उसमें आइस अच्छी तरह से फॉर्म नहीं हुई होगी। दैट इज़ द इम्पैक्ट ऑफ योर थिंकिंग। आप फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट पेशेंट को दे रहे हो, पूरा टेक्निक अप्लाई कर रहे हो, अगर आपकी थिंकिंग सही नहीं है, अगर थॉट आपका पॉजिटिव नहीं है, आप पेशेंट को ठीक नहीं कर सकते। Many of my colleague will go with my words. उन्होंने खुद फील किया होगा प्रैक्टिस में। तो टेक्निक को अप्लाई करिए। बाकी गाइडेंस के लिए आप हमसे बात कर सकते हैं, जीमेल कर सकते हैं। आई एम ऑलवेज फॉर यू, फॉर हेल्पिंग यू, फॉर गाइडिंग यू इन दिस योगिक फिजियोथेरेपी टेक्निक्स। तो थैंक्स टू अगेन मुदगिल सर, उन्होंने मौका दिया मुझे ये बात रखने का अपना योगिक फिजियोथेरेपी के ऊपर। तो आप इसको फॉलो करें, आपको बहुत बेनिफिट होगा। इसी के साथ सभी को मेरा नमस्कार, प्रणाम, आदाब अर्जे, बाय, टेक केयर, सायोनारा, थैंक यू।